we are starting a brand new topic. Can you see this slide? Yes, sir. Okay. So we are starting nuclear magnetic resonance. I think 4 or 5 next lecture will be on this topic. And we will cover the theory of NMR, and we will learn how to use these NMR spectra to elucidate the structure of molecules. So here is the overview of this technique. This is the most important technique for chemists. When they are elucidating the structure of a molecule, then they mostly rely on the NMR spectroscopy for the carbon framework. So just to remind you that a typical organic molecule contains 2 parts. One is the carbon framework, and the other part is functional group. So functional group, as you know, can be easily identified by IR spectroscopy, but carbon framework is tough as far as other spectroscopy techniques are concerned. We can take some help from mass spec, we can take help from IR, but no technique can beat NMR spectroscopy as far as the carbon skeleton is concerned. Okay, so when you combine IR with an NMR, then you can completely elucidate the structure without any ambiguity, without any isomeric ambiguity. So that is what we are going to learn in this technique. This technique depends on some magnetic properties which are present in the atomic nuclei. So again, just to revise some concept, we know there is a nucleus in each atom, and this nucleus have magnetic properties. So magnetic properties, I think something is wrong with my pen, so I will correct it first. Okay. So the magnetic property of nuclei is used in this technique. Okay, but you have to remember that not all isotope of elements in periodic table, they are NMR active. Some of them are NMR active, some are not NMR active. So another things which is required for this technique is a strong external magnetic field. Okay, so first prerequisite for this technique is a nucleus should be NMR active, and second requisite is the presence of external magnetic field. This external magnetic field actually induce atomic nuclei to occupy different energy state. Okay, so why we need external magnetic field? Because the nuclei, they will have a different energy state, and these energy states can only be present when external magnetic field is applied. Okay, and these energy states which are formed, which are induced in the presence of external magnetic field, they are quantized. And once you have quantized state, you can induce energy transfer between these energy states. Therefore, a
if a nucleus is at the lower energy state, let me put this nucleus as a ball, and if it is present at lower energy, and we know that there are different energy state when magnetic field is applied. So let me call this external magnetic field as B naught. So when we applied magnetic field, then the nuclei will have two or more than two energy state, and these energy state can be acquired by nuclei when they have sufficient energy. So if you provide energy to this nucleus at lower energy state, it can jump to the higher energy state, and from there it will come back to the the original energy state, and then it will release the energy which is equal to the difference between these two energy states. And for this technique, we actually measure this energy state. And this energy difference is very small, okay? It is normally in the radio frequency range of the magnetic field, electromagnetic radiation. So आपके पास आपने पहले IR में देखा था कि IR depend on the infrared spectrum, and then UV visible depend on the UV spectrum, and now we are talking about NMR, which depend on the radio frequency range of the electromagnetic radiation. Okay, now this last point is the whole summary of the NMR theory. So when we apply external magnetic field, some nuclei, they will split into different energy state, and after absorbing radio frequency, they can be promoted to higher energy state, and this phenomena is called resonance. And when they are relaxing, then they emit the absorbed energy, which is recorded as NMR signal. All right. Okay, now we talk about the spin of nucleus. So this is a kind of terminology from the quantum physics, which says that the nuclei or the nucleus of an atom, they have some spin, which is described by this spin quantum number I. Okay. And this spin quantum number actually originate from the original spin of protons and neutrons. Acha, those of you who are from chemistry major, they must know that every electron have a spin quantum number, which is called positive half and negative half. So it can be, the electrons are spinning. Similarly, we can say that the proton are spinning and neutrons are also spinning. So this is proton, this is neutron, and they also have a spin quantum number. And when the spin quantum number, they are paired, they cancel each other. But when they are not paired, then their spin will be felt at the nucleus level. Okay, so अगर आप ये देखें कि different protons, different जो neutrons हैं nucleus के अंदर, so if all of them are spinning, some are spinning in clockwise, some anti-clockwise, just for the assumption. So if they are paired together, they will cancel each other and net spin will be zero. But if all things are not paired up, then the net spin will be felt at the nucleus level. At this level, this spin will be observed.
Okay, so using some empirical rule, we can determine the spin of an isotope. इस टेबल में आप अच्छे तरीके से देखिएगा कि अगर आपको पूछा जाए कि which of the nucleus have the spin quantum number and which does not have spin quantum number, you have to use this empirical rule. So what we have done here is we have split a isotope in the number of proton, number of neutron, and the mass number of that isotope, and then the spin quantum number, nuclear spin quantum number I, and then we decide whether it is NMR active or not, and then we will see some example of that. So first of all, if number of proton are odd and number of neutron are odd, then their mass number will be even. Okay, अब इसमें ये होगा कि अगर ये यहाँ पे odd number में है, let's see there are 3 and 3 of them have, 2 of them are paired but 1 is not paired. Similarly, if we have odd number of neutron, 2 of them will be paired and 1 is unpaired, then this unpaired electron, the proton and unpaired neutron, that will not completely cancel each other. So their spin will not completely cancel. And although the spin, their mass number is even, but they will still be NMR active. They will still have a spin quantum number which is equal to whole. It's called quadrupole quantum number. इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे. But you should keep that in mind that if number of proton is odd, number of neutron in isotope is odd, then they will have spin quantum number, which is a whole number, 1, 2, 3, 4, or 5. Okay, that isotope will be NMR active, and its की example हैं जैसे deuterium है, जो हाइड्रोजन का आइसोटोप है जिसमें 1 proton and 1 neutron होता है. Similarly, the major isotope of nitrogen with 7 neutron, 7 proton, total mass is 14. And this isotope is also NMR active, but its spin quantum number is 1, 2, or 3. Okay. Okay, at one time, a nuclei will have only one I value. ये आपने ये याद रखना, but that will be in a whole number. Okay, if number of proton is odd but number of neutron are even, then mass number will be odd, and in this case, they will not be able to cancel each other, and one of the nuclear particle will always be unpaired. और result क्या होगा कि we always have a spin associated with that nuclei with the spin quantum number value of 1/2 or 3/2 or 5/2. So that will not be a complete whole number, that will be 1/2 number. This is very important concept because without this information, we will not be able to predict the energy state which we talked in the first slide. Okay, so clear this concept very nicely. Okay, now this isotope is also NMR active. और इसकी एग्जाम्पल क्या है, नॉर्मल जो हाइड्रोजन है प्रोटॉन विच इज 99% इन द हाइड्रोजन सैंपल, एंड नाइट्रोजन 15 आइसोटोप, एंड फ्लोरीन 19, that they are NMR active isotope. Okay, if number of proton is even and a neutron are odd, then again mass number will be odd and the spin cannot be cancelled out, and we will have still fractional spin quantum number. The nuclei will be NMR active, and examples are C13. C13 के बारे में आप जानते हैं कि that is only 1.1%
in a sample in natural abundance. Oxygen 17, that is also NMR active nucleus. Lastly, if number of proton and number of neutron, they are even, we will have an even mass number. They will completely cancel each other, and we will have no spin quantum number associated with that. So these nuclei will not spin and they will not have NMR signal. So इसकी एग्जाम्पल जो है वो कार्बन जो नॉर्मल आइसोटोप है कार्बन का, that is the example, and then oxygen 16, that is the example of this nuclei. The nucleus with a positive charge is, if it is spinning, it is like a it is like a circulation of electric current in a loop. ओके यानी अगर आपका जो न्यूक्लियस है अगर ये स्पिन कर रहा है, बिकॉज वाई स्पिन कर रहा है, बिकॉज इट हैज ए स्पिन क्वांटम नंबर विद इट. इफ इट इज स्पिनिंग then it is just like a current which is moving in a circle. और फिजिकल लॉ हमें बताते हैं कि whenever a charge move in a circular path, then it generate a magnetic field, or this magnetic field is in the middle or in the axis or in the center of circular motion. So that is why we can consider कि हमारा जो एक न्यूक्लियस है जो स्पिन कर रहा है, इट इज लाइक ए टाइनी मैग्नेट, जिसको हम एक एरो से इंडिकेट कर सकते हैं. तो ये एरो जो है दैट इज आवर मैग्नेट with the similar properties like normal magnet have, कि उसके अंदर एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है. तो सिमिलरली जो टाइनी मैग्नेट बनता है उसको हम एक एरो से इंडिकेट कर सकते हैं, और एरो का जो हेड है दैट इज लाइक ए नॉर्मल पोल, नॉर्थ पोल, एंड जो उसकी टेल है दैट इज लाइक ए साउथ पोल. Okay, so precisely the spinning and charge, ये दो जो प्रॉपर्टी है न्यूक्लियस के अंदर, दो प्रॉपर्टी है. It has a charge and it is spinning, then it will induce or impart a small magnetic moment which is called mu. अब इस mu को हम इस एरो से इंडिकेट करते हैं, which is represented by an arrow. Arrowhead is equal to north pole and tail is equal to south pole. So magnitude of magnetic moment mu depend on the type of nucleus, यानी किस किस्म का nucleus है. If it is hydrogen, if it is a carbon 13, if it is a phosphorus 31, or if it is a lithium 7. So it depends on what type of nucleus we have. So इसका मतलब यह है कि ये जो म्यू है इसकी वैल्यू हर न्यूक्लियस की डिफरेंट होगी, एंड दैट इज गिवन बाय दिस इक्वेशन. म्यू इज इक्वल टू गैमा टाइम्स h over 2 pi टाइम्स I. अब इसमें गैमा क्या है? दिस इज ए मैग्नेटोजाइरिक रेशियो. मैग्नेटिक जाइरिक रेशियो का मतलब यह है कि कोई चीज कितनी बड़ी मैग्नेट है. यानी अगर सपोज करें कि आपके पास एक स्फीयर है which is magnet and it is spinning also, then the spin the property of magnetic property divided by the spin property, that ratio is called the magnetogyric ratio. Okay, again magnetic gyro ratio क्या है कि how big is the spin and how big is the magnetic moment. और ये एरो कितना स्ट्रॉन्ग है और स्पिन कितना है, इन दोनों की रेशियो को मैग्नेटोजाइरिक रेशियो कहते हैं, और ये गैमा से मालूम होती है. एंड गैमा इज ए कांस्टेंट फॉर every nucleus. It is different for hydrogen and different for carbon
So every nuclei has its own magnetogyric ratio, and that is constant for that isotope or that nucleus. Okay, I is our spin quantum number, जिसको हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था कि that could be 1/2, that could be completely whole number, or it can be 3/2 etc. ये वैल्यू हर न्यूक्लियस की डिफरेंट होती है. फॉर आवर पर्पस जो हम इस कोर्स में पढ़ेंगे, सो फॉर हाइड्रोजन द वैल्यू ऑफ आई इज 1/2 and value of carbon 13 that is also 1/2. सो हमारे लिए ये बड़ा इजी हो जाता है कि हमारे जो न्यूक्लियस हैं का हाइड्रोजन और कार्बन that have identical spin quantum number I. Okay, लेकिन इन दोनों न्यूक्लियाई की जो मैग्नेटोजाइरिक रेशियो है दैट इज डिफरेंट. ओके, क्योंकि हाइड्रोजन में सिर्फ एक प्रोटॉन है और उसकी वजह से जो स्पिन होता है तो उसका मैग्नेटिक वेक्टर भी डिफरेंट होता है. लेकिन कार्बन 13 में आपके पास 13 पार्टिकल हैं न्यूक्लियस के अंदर, जिसमें 6 प्रोटॉन हैं और 7 न्यूट्रॉन हैं, और उसकी वजह से स्पिन डिफरेंट होगा, और उसके बाद जो उसका मैग्नेटिक मोमेंट जो दैट इज आल्सो डिफरेंट, तो उसकी रेशियो डिफरेंट है. ओके, क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई फॉर कार्बन 12, जो बिगर कार्बन है इसके लिए व्हाट इज आई? सर यस, इसमें इवन आएगा तो आई की वैल्यू 0 होगी. आई की वैल्यू 0. वेरी गुड. सो इसकी आई की वैल्यू 0 है. उसके बाद जब आप आई की वैल्यू यहाँ पे 0 फिल करेंगे, व्हाट विल हैपन? मैग्नेटिक मूवमेंट विल बी 0. जब मैग्नेटिक मूवमेंट 0 है तो इसका मतलब देयर इज नो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद कार्बन 12. ओके, ऑलराइट. नाउ when these nuclei are present in the absence of any external magnetic field, they do not have any proper orientation, so they will be oriented randomly. यानी इसका ऐसे समझ लें कि हमारे पास फॉर एग्जांपल एक मॉलिक्यूल है जिसके अंदर हाइड्रोजन है और कार्बन भी है. मैं ज़रा थोड़ी सी आपको इसको ज़्यादा एलेबोरेटिव वे में इसको एक्सप्लेन कर दूं. सो अभी हमने ये देखा है कि जो हाइड्रोजन है दे आर NMR एक्टिव, सो दे हैव स्पिन एंड दे हैव मैग्नेटिक मूवमेंट. सो इनके मैग्नेटिक मूवमेंट को हम सपोज करें इस एरो से इंडिकेट करते हैं. सो ये हर जो हाइड्रोजन है दैट विल बी ए टाइनी मैग्नेट. और अगर आपने इस अल्कोहल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रखा हुआ, then these vector they will be oriented randomly. For example, this hydrogen can be oriented here like that, not the other way. This nuclei can be oriented like this. This hydrogen can be oriented like this. So they are randomly oriented. Okay, and the energy difference between all orientation is 0. There is no energy difference. So all जो orientation है they are degenerate. They have the same energy level. Okay, but when the same sample is present in a strong magnetic field, let's say कि B0 जो magnetic field है उसके अंदर अगर आपने इस सैंपल को रखा है
तो ये जो टाइनी मैग्नेट है, दे विल लाइक टू अलाइन आइदर पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड or they will be anti-parallel to the magnetic field. Okay, they cannot adopt any other orientation randomly, so they are not free. यहाँ पे आप कह सकते हैं कि they have a freedom, but here they don't have no freedom. So जब भी आप magnetic field apply करेंगे तो all tiny nuclei they will orient parallel or anti-parallel to the applied magnetic field. ओके, ये सिचुएशन ऐसी है कि अगर आप इसको देखें कि जैसे अगर आपका ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, मैं इसको लेट बी टाइप बी नॉट हियर, ये आपका अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है जिसका नॉर्थ पोल आपको ऊपर नजर आ रहा है, साउथ पोल इसका नीचे आ रहा है। तो ये टाइनी मैग्नेट है जो हमने एरो से इंडिकेट किया हुआ, ये हाइड्रोजन का मैग्नेट है। तो अगर हाइड्रोजन का मैग्नेट भी इसके पैरेलल है, जिस तरीके से इसका साउथ डाउन है, इसका साउथ डाउन है, नॉर्थ अप है, नॉर्थ अप है, तो नॉर्थ और साउथ ये एक दूसरे को करीब से एक दूसरे के करीब होंगे, दे विल बी अट्रैक्टिंग ईच अदर। जैसे मैग्नेट का नॉर्थ पोल साउथ पोल को अट्रैक्ट करता है, ऐसे ही अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ पोल will attract the tail which is south pole of the atomic nuclei. ये क्लियर हो गया? So that means this is a low attraction and this is a low energy state. So अगर आप इसको एक एनर्जी स्टेट कहेंगे, so that will be low energy state. लेकिन अगर आपका जो न्यूक्लियाई है दैट इज अपोजिंग द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इन सच अ वे कि साउथ जो है वो साउथ के करीब है, देन दैट विल रिपेल ईच अदर एंड दैट विल बी हाई एनर्जी स्टेट। तो इसका मतलब ये हुआ कि व्हेन एवर यू अप्लाई ए मैग्नेटिक फील्ड, द रैंडमली ओरिएंटेड न्यूक्लियाई विल ईदर गो टू दी लो एनर्जी स्टेट, जैसे ये सारे रेड पिंक जो न्यूक्लियाई हैं, दे आर ऑल इन लो एनर्जी स्टेट, एंड द न्यूक्लियाई कैन आल्सो गो टू द हाई एनर्जी स्टेट. दिस इज हाई एनर्जी स्टेट. Okay, I will tell you why they are in high energy state in the next slide, but there are only limited number of orientation when magnetic field is applied. When magnetic field is on, then they can have only one of the available allowed energy state. Okay, so ये number of allowed energy state हम determine करते हैं by formula 2I+1. I क्या है? स्पिन क्वांटम नंबर है, और ये मैंने कहा है कि हाइड्रोजन के लिए ये 1/2 है, कार्बन के लिए भी ये 1/2 है. सो द नंबर ऑफ ओरिएंटेशन फॉर द मैग्नेटिक डाइपोल, ये जो एरो है इसको हम मैग्नेटिक डाइपोल भी कहते हैं क्योंकि इसमें दो पोल हैं, एक हेड पोल है, एक नॉर्थ पोल. सो नॉर्थ और साउथ पोल जो है, इसकी वजह से इसको मैग्नेटिक डाइपोल कहेंगे. सो मैग्नेटिक डाइपोल की कितनी स्टेट पॉसिबल हैं? 2I+1. सो 2 × 1/2 + 1 विच इज इक्वल टू 2. सो इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस है या C13 का न्यूक्लियस है, दैट कैन बी ओरिएंटेड बाय 2 allowed state. One is low energy state and other is high energy state. Okay, so the magnetic moment of hydrogen and C13, they will be either aligned parallel. पैरेलल को हम बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव हाफ कहेंगे, और एंटी पैरेलल जिसको हम बाय डिफॉल्ट नेगेटिव के साथ, नेगेटिव स्पिन क्वांटम नंबर के साथ शो करेंगे. और ये जो एंटी पैरेलल स्टेट है दैट इज हाई एनर्जी स्टेट, और जो पैरेलल स्टेट है दैट इज लो एनर्जी स्टेट, जिस तरीके से ऊपर हमने इंडिकेट किया हुआ है.
So nuclei having parallel to the applied state are low energy state, and those applied anti-parallel, they will be high energy state. Quick question. All right. Now, when we have the energy state, we should be able to find to draw the energy state, energy level diagram. Okay. ये आपने इसमें सीखना है. So for a nuclei, for a hydrogen nuclei with I1/2, there are two spin state. और ये टू स्पिन स्टेट हम कहते हैं कि जब आपका न्यूक्लियस मैग्नेटिक फील्ड मौजूद नहीं होता, व्हेन देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड, then these two spin state will be degenerate. They will have same energy. But in the presence of applied magnetic field, they will split into two energy state. One lower energy state, जिसको प्लस हाफ कहेंगे, और अदर विल बी हाई एनर्जी स्टेट विद द नेगेटिव, एंड दैट विल बी अलाइंड अगेंस्ट द मैग्नेटिक फील्ड. जिस तरीके से इस शेप में दिखाया हुआ है कि बी नॉट इज ए मैग्नेटिक फील्ड if it is aligned parallel to the applied magnetic field, that is low energy, or that will be shown with a positive sign, and the number will be the same as the spin quantum number. And if it is aligned anti-parallel to the applied magnetic field, then it will be negative, and that will be high energy state. इसको हम इस तरीके से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अगर ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इस तरह है कि वी हैव ए नॉर्थ पोल पॉइंटिंग अप, साउथ पोल पॉइंटिंग डाउन, तो अब आपका जो हाइड्रोजन है दैट कैन बी अलाइंड you know, in such a way that south is near a north pole, and south of your tiny magnet is close to the north pole of applied magnetic field, and the north pole of magnetic moment is close to the south pole. So that is low energy attractive situation. जब आप इसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, आप इसको एक्साइट करेंगे इसको, then it will go to the next higher energy state. अब इस हाइड्रोजन के पास सिर्फ दो स्टेट ही हैं, या तो ये पैरेलल हो सकता है या एंटी पैरेलल हो सकता है इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो आप यहाँ से लो एनर्जी जो हाइड्रोजन है, न्यूक्लियस है, इसको आप एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, इट विल गो टू दी हायर एनर्जी स्टेट. और जब ये यहाँ पे एनर्जी लूज करेगा, इट विल गो कम बैक टू दी दिस एनर्जी स्टेट, एंड absorbed energy will be emitted in the form of NMR signal. Okay, let's look at the nucleus which have a spin quantum number positive 1. It is a whole number quantum number. तो अब आप 2i प्लस 3 फार्मूले में i की जगह पे 1 रखेंगे, तो वी विल हैव दी 3 स्पिन स्टेट. और वो 3 spin state will be degenerate when there is no magnetic field, but split into 3 different energy levels when applied magnetic field is present. So we will have the lowest energy spin state with the plus sign, and then we will have zero spin with without any effect, because that is in the middle, and then we will have a anti-parallel state. So in this form we will have a parallel state which is low in energy, and then the state which is in the middle, so that is like in the medium energy level. And then we will have anti-parallel state which is with the high energy spin state. Okay, so जब आप ड्यूटेरियम की बात करेंगे, तो it will have a 3 spin state, और उनकी ओरिएंटेशन इस तरीके से होगी. अगर आप इसको
फिजिकल फॉर्म में देखें, इफ़ यू वांट टू विजुलाइज, तो आप एज्यूम करें कि मैग्नेटिक फील्ड आपका इस तरीके से ओरिएंट है, then the lowest energy deuterium will be the one which have the arrow pointing down, और इसमें south और north they will be attracting each other, and then we will have a nuclear. When you apply energy, then it will first go to this energy level, and then further application of energy will put in that nuclei completely opposing the applied magnetic field. So deuterium की form में we will have 3 spin state. Hydrogen की form में we will have only 2 spin state. Okay. Now chlorine की example देखें. Chlorine is also NMR active. इसमें जो प्रोटॉन हैं they are odd, और इसके जो न्यूट्रॉन हैं they are even. और उसके बाद अगर आप इसका स्पिन क्वांटम देखें दैट इज फ्रैक्शनल, और इसका जो स्पिन क्वांटम नंबर है दैट इज 3/2, और स्पिन स्टेट जो है वो अगर आप 2I+1 फार्मूला लगाएं, 2 मल्टीप्लाई बाई 3/2 + 1, सो 2 इसमें से कैंसिल हो जाएगा, सो 3 + 1 विच इज इक्वल टू 4. सो क्लोरीन की फॉर्म में वी शुड एक्सपेक्ट 4 quantum state. When there is no magnetic field, all spin state will be same, equal energy, degenerate. But when you apply a magnetic field, they will split into 4 level. We will have the this is a positive sign here. We will have a positive 3/2 with the lowest energy, and then this is the medium low, then this is the high and medium high, and this is the highest energy state, जिसकी ओरिएंटेशन विद रिस्पेक्ट टू अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से होगी कि जो पैरेलल है दैट विल बी द लोएस्ट एनर्जी, एंड जो मीडियम लो है दैट विल बी स्लाइटली अवे फ्रॉम द कंप्लीटली पैरेलल सिचुएशन. ओके, इसमें जो parallel situation that is a little bit disturbed, and then we will have a completely parallel orientation where with the highest energy, and then we will have in between the medium high energy spin state. Okay, अब इसको पिक्टोरियल फॉर्म में आप देख सकते हैं कि जो लोएस्ट एनर्जी स्पिन स्टेट में ये इसका स्पिन जो है वो कंप्लीटली पैरेलल होता है टू दी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड. अब जहां से आप एनर्जी देते हैं तो ये हल्का सा टिल्ट हो रहा है, ये देखिए इस तरीके से इसके अंदर एक रोटेशन पैदा हो रही है इस एनर्जी की वजह से. इसको अगर आपने मजीद एनर्जी दी तो ये और ज्यादा टिल्ट हो जाएगा, ये इस तरीके से इस तरीके मूव कर रहा है, एंड देन फर्दर एनर्जी विल पुट इट कंप्लीटली अपोजिट to the applied magnetic field, and that will be the nuclei with the most high energy in the system. Okay, now for every nuclei you have to consider the constant I value and apply the formula 2I+1 to find out how many energy spin states are allowed. Okay, and they are donated by positive I to negative I by with the difference of 1. अच्छा, डिफरेंस ऑफ 1 कैसे आपने निकालना है? फॉर एग्जांपल अगर आपके पास स्पिन स्टेट +2 है, +3/2 है, तो इसकी सबसे लोएस्ट जो स्पिन है दैट विल बी द +3/2. उसके बाद जो मीडियम लो है उसको आपने करना 3/2 - 1, इसमें से एक आप सब्ट्रैक्ट कर दें, तो एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दैट विल बी +1/2. सो दैट इज आवर स्पिन स्टेट. दिस आप इसको लेबल करेंगे +1/2. +1/2 से दोबारा 1 -1 करें तो ये -1/2 हो जाएगी. सो दैट इज आवर स्पिन स्टेट दिस. और अगर इसको भी -1 से आप करेंगे तो दैट विल गिव यू -3/2. सो दिस इज दिस स्पिन स्टेट. तो इसका मतलब ये है कि कोई भी स्पिन स्टेट दी हो आप -1 उसमें से करते जाएं
तो आपको प्लस आई से लेके नेगेटिव आई तक, यानी +1/2 से -3/2 तक आपने इसकी 4 स्टेट डिटरमिन कर लेनी है। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन है कि अगर आई जो है वो 5+2 हो तो इसमें कितनी स्पिन स्टेट होंगी और उनको कैसे लेबल करेंगे, क्विकली बताएं। 6 होंगी सर। सॉरी, 6 होंगी स्टेट्स। 6 स्पिन स्टेट होंगी, वेरी गुड। और उनको कैसे लेबल करेंगे, 1 2 3 4 5 6। लेबल कैसे करेंगे, सबसे लोअर वाली क्या होगी, 5/2 +5/2, और इसमें से इसके बाद इसमें 1 माइनस -1 कितनी, 1 माइनस कर देंगे इसमें से, तो वो जो है नहीं इसमें से -1 करेंगे तो क्या होगा, 5/2 -1, so 2 5 -2 is equal to 3/2, so that will be +3/2, और 3/2 से माइनस हमने पहले किया हुआ है, that will be +1/2, और +1/2 से -1 किया हुआ है हमने पहले, -1/2, एंड देन -1/2 से हमने किया हुआ है -3/2, एंड देन इसके अंदर से -1 करेंगे तो -5/2। तो आप देखें +5/2 से आपने स्टार्ट किया है, -5/2 तक आप चले गए, दैट इज द हाईएस्ट एनर्जी स्टेट। तो इस तरीके से आप इनको लेबल कर सकते हैं, और इनकी ओरिएंटेशन इस तरीके से होगी कि जो लोएस्ट एनर्जी है दैट विल बी कंप्लीटली पैरेलल टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, और जो हाईएस्ट है वो कंप्लीटली एंटी पैरेलल होगी टू द अप्लाइड फील्ड, और बाकी सारी इसके दरमियान इस तरीके से अरेंज होंगी। क्वेश्चन, okay, let's move. Okay, in the absence of external magnetic field, all spin state are degenerate. Degenerate means that they have same energy level. The external magnetic field splits them into different energy levels. तो ये आपका टेक होम मैसेज है। ओके, अब क्वेश्चन ये है कि अगर स्पिन स्टेट है तो व्हाट इज डिफरेंस, व्हाट इज द एनर्जी गैप, व्हाट इज डेल्टा ई बिटवीन दैम। क्योंकि ये डेल्टा ई अगर हमें मालूम हो जाए तो वी कैन अप्लाई दिस एनर्जी and we can fill this gap and put the nuclei in low energy to high energy, and then from there it will come back and release energy in the form of signal. So that is the purpose to calculate delta E here. So the energy of any spin state in the presence of external magnetic field is given by this formula. कोई भी spin state है ना E, उसकी जो energy है that is proportional to the magnetic moment, यानी वो कितना strong magnet है और applied magnetic field की strength क्या है। ओके, तो ये एक जनरल फिजिकल इक्वेशन है जो कि फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि जो एनर्जी है किसी भी स्पिन स्टेट की that is directly proportional to the spin dipole, the magnetic dipole and the strength of magnetic field. अब हमने U जो है म्यू मैग्नेटिक मूवमेंट, इसकी हमने वैल्यू निकाली हुई है, पहले हमने चेक की थी कि दैट इज गैमा h/2 टाइम्स द स्पिन क्वांटम नंबर। ये हमने पहली स्लाइड पे इसको देखा था। तो हम इसकी वैल्यू को यहाँ पे फीड कर देते हैं। तो जब आपने u की वैल्यू यहाँ पे रखी तो हमारे पास जो e की वैल्यू है दैट बिकम दिस। नाउ अब ये अगर आप सपोज करें कि यू आर डीलिंग विद द हाइड्रोजन न्यूक्लियाई, और हाइड्रोजन न्यूक्लियाई का आई जो है वो +12 है। सो द एनर्जी ऑफ द लोअर स्पिन स्टेट, आपने क्या करना है कि लोअर स्पिन स्टेट के लिए आई की यहाँ पे वैल्यू ऐड कर दें। तो आई जो है वो 1/2 है, बाकी सारी चीज़ें आपकी वैसे ही हैं, सिर्फ आपने आई जो स्पिन क्वांटम नंबर है यू जस्ट ऐड द वैल्यू ऑफ दैट स्पिन क्वांटम नंबर। और उसकी जो दूसरी स्पिन स्टेट है, क्योंकि देयर आर टू I+1 फार्मूला बताता है कि देयर विल बी 2 स्पिन स्टेट। सो हाई एनर्जी स्पिन स्टेट with the लो एनर्जी स्पिन स्टेट
with the plus half, and low high energy spin state with negative half will be given with the negative value. आप यहाँ पे negative value इसकी ऐड कर दें तो we will have value of E for the high energy layer. अब इनके दरमियान जो difference है delta E, that is equal to the energy of high energy state minus energy of the low energy state. तो लो एनर्जी स्टेट आपकी प्लस हाफ है और हाई एनर्जी स्टेट माइनस हाफ है. तो आप जब आप इनको ऐड करेंगे तो वी विल कम अप विद दिस इक्वेशन. तो डेल्टा ई इज इक्वल टू द एनर्जी ऑफ द लो एनर्जी स्टेट माइनस द एनर्जी ऑफ हाई एनर्जी स्टेट. दैट विल गिव अस, यहाँ से माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस हाफ टू हाफ जब कंबाइन होंगे तो दैट विल बिकम इक्वल टू 1 एंड आपके पास डेल्टा ई की वैल्यू ये आ जाएगी. और ये वैल्यू जो है वो प्लैंक्स फार्मूला के तहत एच म्यू के बराबर होती है. यानी अगर आपके पास मैग्नेटिक जायरो दिया वैल्यू दी हुई है, एच प्लैंक्स कांस्टेंट, यू नो दैट पाई की वैल्यू आपको पता है, तो अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड बता दी जाए you should be able to calculate delta E. Okay, thus the energy required to cause transition between the energy state is delta E is equal to gamma times h over 2 pi times b naught. तो इसमें ये वैल्यू आपको पहले बताया हुआ है, that is a constant and that will be given for calculation. Okay, the energy gap between spin state of nuclei depend on the value of B naught. अब इस इक्वेशन में देखें, अगर B naught अगर आप बढ़ाएंगे तो डेल्टा E भी बढ़ जाएगा. And that is shown in this diagram. कि at this stage when we have no magnetic field, आपके पास कोई magnetic field नहीं है, जीरो टेस्ला है, तो यहाँ जो भी spin state होगी that will be degenerate और उनकी कोई एक प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं होगी, दे विल बी रैंडम. लेकिन जब आप एक टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इनमें स्पिन जो है वो स्प्लिट हो जाएगी, स्पिन स्टेट स्प्लिट हो जाएंगी और उनकी एनर्जी जो है वो आप इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं. वो हम नेक्स्ट स्लाइड में इसकी प्रैक्टिस करेंगे. अच्छा, जब आपका मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती है, आपने 1 टेस्ला से बढ़ा के 4.7 टेस्ला पे कर दिया, तो द एनर्जी गैप आल्सो इंक्रीज एंड दिस एनर्जी इज नाउ almost 7 times, almost 3 times bigger than the previous energy. ओके, जब आपने मैग्नेटिक फील्ड को और ज़्यादा इंक्रीज कर दिया, 14.1 टेस्ला पे किया, तो मैग्नेटिक जो डेल्टा ई है उसकी वैल्यू भी इंक्रीज हो गई. सो फ्रॉम दिस डायग्राम we can take this message that as the magnetic field strength increases, the energy gap between two nuclei that also increase. Okay, और इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है वो हम आगे देखेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है कि जब आप मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे तो उनके दरमियान डेल्टा ई भी बढ़ जाएगी और उसकी बहुत बड़ी इम्प्लीकेशन है, हम वो आगे देखेंगे. यहाँ तक कोई क्वेश्चन? नो सर. ओके, चलें जी, ये क्विज है छोटा सा. कैलकुलेट द डेल्टा ई between two nuclear spin state for hydrogen when it is placed in 1.41 Tesla या when it is placed in 11.75 टेस्ला. और इसमें जो मैग्नेटोजाइरिक रेशियो हाइड्रोजन की है वो यहाँ दी हुई है, इसकी वैल्यू. और अगर आप ये मालूम कर देते हैं तो व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इन हर्ट्ज फॉर दिस एनर्जी, और फिर उसके बाद आपने बताना है कि किस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के किस पार्ट से ये एनर्जी प्रोवाइड होती है. ओके, आपके पास 1 या 2 मिनट है, उसके अंदर इसको फिगर आउट करें, कैसे करेंगे?
इसकी इक्वेशन मैं लिख देता हूँ आपको, डेल्टा ई इज इक्वल टू एप्सिलॉन गैमा h over 2 pi dot b naught. सर एनर्जी आ रही है 3.97 into 10 raised to power minus 26 joules. Sorry? सर एनर्जी 3.97 into 10 raised to power minus 26 आ रही है 1.41 टेस्ला के लिए. आपने कितने टेस्ला पे किया है? 1.41 टेस्ला पे. यस सर. आपने दोबारा बताएंगे कितनी एनर्जी है? ई दोबारा बताएं. 3.97 into Okay. 10 raised to power minus 26. Okay, that's correct. और उसके बाद आप फ्रीक्वेंसी उसमें जो h से आप इसको मल्टीप्लाई कर दें तो उसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी. लेट मी सॉल्व दिस वन क्विकली. इसके दो पार्ट हैं. जो आपका ए है इसके दो पार्ट हैं. तो पहला पार्ट है फॉर 1.41 टेस्ला. ये आपका बी नॉट है. इसमें आप डेल्टा ई जो है वो आप निकालेंगे बाय अप्लाइंग द फार्मूला 267.53 times 10 raised power 6 divided by 2 times 3.1415. ये रेडियन में है. और यहाँ आपके जो यूनिट हैं दे आर रेडियन ओवर सेकेंड टाइम टेस्ला. सो रेडियन यहाँ से आपका कैंसिल हो जाएगा. इसके बाद ये जो h over 2 पाई आपका आ जाता है. h है 6.626 टाइम 10 रेज पावर -34 जूल सेकेंड. और 2 पाई मैंने इधर लिख दिया है. और इसके बाद आपने मल्टीप्लाई करना है 1.41 टेस्ला से. सो टेस्ला से आपका टेस्ला कैंसल, सेकंड से आपका पास सेकंड और इसके बाद सिर्फ जूल रह जाएगा. और जो नंबर आपके पास आते हैं वो 267 टाइम 10 रेज पावर 6 टाइम 6.626 into 10 raised power -34 divided by 2 multiply by 3.1415. और इसके जो यूनिट है वो जूल आ जाएंगे. जो कैलकुलेशन के बाद हमारे पास आते हैं 3.98 into 10 raised power -26 जूल. अब ये देखें, इट्स ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी, एक्सट्रीमली स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी. यानी इसका गैप इतना कम है कि अगर आप इसकी अब आप फ्रीक्वेंसी लेंगे, दिस इज इक्वल टू, दिस इज डेल्टा ई. और डेल्टा ई आपको पता है कि एच म्यू के बराबर है. तो अगर आप इसमें एच से इसको मल्टीप्लाई, इसको डिवाइड कर दें 6.67626 टाइम 10 रेज पावर -34 जूल सेकंड से, तो जूल से कैंसिल हो जाएगा जूल. और आपके पास जो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी इसकी 600,37768 हर्ट्स. क्योंकि 1/2 इज हर्ट्स. अब इसको अगर आप 6 यूनिट इस साइड पे चले जाएं तो 6 यूनिट इस साइड पे आ जाए. सॉरी, 1 2 3 4 5 6. तो 60.3
मेगाहर्ट्ज। और मेगाहर्ट्ज आपको पता है कि रेडियो फ्रीक्वेंसी की रेंज होती है, तो इट इज़ ए रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन। ओके, अब जिनकी क्लास है वो आप लीव कर सकते हैं, बट आई विल कंप्लीट दिस लेक्चर। 1 और 2 मोर स्लाइड हैं और उसके बाद ये लेक्चर जो है वो ऑनलाइन अपलोड हो जाएगा। ओके सर। ओके, इसके बाद आप 1 पॉइंट जो 11.75 टेस्ला पे भी इसको आप डिटरमिन करेंगे बाय यूजिंग द सेम मेथड। उसके बाद आप उसकी फ्रीक्वेंसी निकालेंगे और उसके बाद उसको बताएंगे कि वो किस मैग्नेटिक फील्ड से किस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्पेक्ट्रम से वो बिलोंग करता है। एंड यू इट विल tell you that in each case, although we are applying very strong magnetic field, the energy gap is very small and that can be filled by radio frequency. Okay. Now, you have already witnessed that the energy gap between the spin state is very small. Therefore, the thermal energy which is available at room temperature is sufficient to populate both energy level. आपको पता होगा कि कुछ जो न्यूक्लियाई हैं वो हाई एनर्जी को भी पॉपुलेट कर रहे होते हैं। इसीलिए जो हमने पहली जो अगर दूसरी स्लाइड पे अगर आपने देखा होगा कि न्यूक्लियाई हमने देखा था कि कुछ न्यूक्लियाई एंटी पैरेलल स्टेट में भी मौजूद होते हैं, बिकॉज द थर्मल रेडिएशन इज सफिशिएंट टू पॉपुलेट बोथ एनर्जी लेवल. ओके, but there is a slight excess of nuclei in the lower energy state. Small excess होती है जिसको हम population excess कहते हैं, यानी जो लोअर एनर्जी स्टेट पे हैं थोड़ी सी न्यूक्लियाई ज्यादा होंगे, और वो हाउ मच दे आर इन एक्सेस दैट कैन बी डिटरमिन्ड बाय बोल्ट्जमैन इक्वेशन. बोल्ट्जमैन की इक्वेशन है कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन हायर एनर्जी स्टेट divided by number of nuclei in low energy state is equal to E raised delta E over KT. डेल्टा ई क्या है? दिस इज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू स्पिन स्टेट. ये हमने प्रीवियस जो क्विज है उसके अंदर हमने इसको सॉल्व किया था कि डेल्टा ई कैसे निकालनी है. बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये कांस्टेंट वैल्यू है विच वैल्यू इज 1.38 टाइम्स 10 raised पावर -23. तो ये वैल्यू आपको न्यूमेरिकल में दी होगी. और टेम्परेचर आपका जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है केल्विन में, तो आपको जो भी टेम्परेचर दिया हुआ होगा तो आपने उसको इसमें केल्विन में करना है. तो यहाँ एक और क्विज है कि फाइंड द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियाई इन बोथ एनर्जी लेवल. आपने ये फाइंड आउट करना है कि ये जो दो एनर्जी लेवल हैं इसमें कितने न्यूक्लियाई होंगे एट 25 डिग्री और इन द प्रेजेंस ऑफ 7.05 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड. ओके, तो इसको कैसे सॉल्व करना है? सबसे पहले तो आप ये इक्वेशन लिखें जो बोल्ट्जमैन की है. इसमें डेल्टा ई हमने प्रीवियस इक्वेशन की तरह कैलकुलेट करना है और वो आपके पास आएगा 1.989 टाइम 10 raised पावर -23 जूल. तो ये वैल्यू आपने इस इक्वेशन से निकालनी है. डेल्टा ई इज इक्वल टू मैग्नेटिक जायरो रेशियो ऑफ हाइड्रोजन जो 2.67.53 इंटू 10 raised पावर 6. और इसके बाद आपके पास आता है प्लैंक्स कांस्टेंट 6.626 टाइम 10 raised पावर -34. और इसके नीचे 2 टाइम्स 3.1415
टाइम्स इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है 7.05 टेस्ला। तो अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो दैट विल गिव अस एनर्जी ऑफ 1.989 टाइम दैट पावर -25। तो ये इसका आंसर होगा। अब ये वैल्यू आपने यहाँ ऐड कर देनी है डेल्टा ई में। इसके बाद के की वैल्यू है 1.38 टाइम 10⁻⁻28 25 डिग्री सेल्सियस। इसमें अगर आप 273 ऐड कर देंगे then this Celsius will be converted to the Kelvin scale. So 298 इसके टेम्परेचर है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो e⁻⁻0.000048366 इसकी वैल्यू आएगी। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो दैट विल गिव अस दिस नंबर। अब इस नंबर को आप क्या करें, यहाँ आपने थोड़ा सा ट्रिक यूज़ करना है, वो ये कि इस पॉइंट को डेसिमल को डिस्ट्रॉय कर दे, ख़त्म कर दे। जब आप डेसिमल को ख़त्म करेंगे तो ऊपर आपके पास नंबर आ जाएगा 999951 और नीचे डेसिमल की जगह पे आप 1 लिखें डेसिमल की जगह पे, और उसके बाद जितने डिजिट हैं हर डिजिट के आगे आप एक ज़ीरो ऐड कर दें तो आपके पास ये एक्सेस आ जाएगी। सो दिस इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन द हाई एनर्जी स्टेट एंड दिस इज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन द लोअर एनर्जी स्टेट। अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 2 मिलियन के करीब बनते हैं, क्योंकि 1 मिलियन नीचे है और दूसरा तकरीबन उसके करीब करीब ही पॉपुलेशन ऊपर है। तो अगर अप्रोक्सीमेटली 2 मिलियन आपके पास न्यूक्लियाई हैं तो उसके पास पॉपुलेशन एक्सेस कैसे आएगी कि आप पॉपुलेशन इन दी लो एनर्जी स्टेट उसको सब्ट्रैक्ट करें द पॉपुलेशन इन दी हाई एनर्जी स्टेट विच इज 1 million minus the upper number that give us the 49. So this 49 is the population excess और NMR का जो सिग्नल है ये इन 49 आउट ऑफ 2 मिलियन आउट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 2 मिलियन न्यूक्लियाई। तो इसमें सिर्फ 49 न्यूक्लियाई जो है वो NMR का सिग्नल प्रोड्यूस कर रहे होंगे। ओके, सो इससे इस स्लाइड में आपने अच्छी तरीके से लर्न करना है कि अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ दी हुई है और आपको टेम्परेचर दिया हुआ है तो आपने डिटरमिन करना है कि पॉपुलेशन एक्सेस कितनी है और उसमें से सिग्नल कैसे कंपैरिजन में कैसे आएगा। ऑफ कोर्स जिस सिचुएशन में पॉपुलेशन एक्सेस ज़्यादा है उसमें सिग्नल भी स्ट्रांग होगा और जिसमें पॉपुलेशन एक्सेस स्मॉल है उसका सिग्नल भी इंटेंसिटी भी कम होगी। ओके, नाउ द लास्ट टर्म विच वी वांट टू लर्न इज द लार्मर फ्रीक्वेंसी। लार्मर फ्रीक्वेंसी एक सोफिस्टिकेटेड नेम है जो हम NMR में फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं। तो ये कहाँ से आता है? सो दी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जिससे आपका ये जो स्पिन स्टेट स्प्लिट होती है that applied magnetic field also induced a wobbling movement of the magnetic movement। ये जो एरो है जो स्मॉल एरो है जिसको हम टाइनी मैग्नेट कह रहे हैं इसके अंदर एक वॉबलिंग मूवमेंट आ जाती है, जिसका मतलब ये है कि ये जो टाइनी मैग्नेट है इसकी जो टिप है दैट इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ। अगर आप इस फिगर को गौर से देखें तो इसकी टिप जो है एक सर्कुलर पाथ ट्रेवर्स कर रही है। इस सर्कुलर पाथ की जो फ्रीक्वेंसी है ओमेगा नॉट उसको हम लार्मर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ओके, तो लार्मर फ्रीक्वेंसी कहाँ से जनरेट हुई है? जब मैग्नेटिक फील्ड आपने अप्लाई किया तो मैग्नेटिक फील्ड से जो न्यूक्लियस की जो टाइनी मैग्नेट की जो एरो हेड है दैट स्टार्ट सर्कुलेटिंग इन ए स्मॉल सर्कल। और अगर आप इसको अगर ये जो स्मॉल सर्कल स्फीयर को देखें
और अज्यूम करें कि दैट इज़ योर न्यूक्लियस, तो आपका न्यूक्लियस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर उसका स्पिन जो है ना वो इस तरीके से इंडिकेट कर रहा, जो इस बॉक्स के अंदर जो एरो है, जो सर्कल के अंदर एरो है, तो वो उसका स्पिन है, और उसके स्पिन की वजह से ये जो बड़ा एरो दिखाया बाहर वाला एरो है, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड, और वो मैग्नेटिक फील्ड इससे वॉबलिंग मूवमेंट शो कर रहा है, और जो न्यूक्लियस है वो इटसेल्फ एक वॉबलिंग मोशन में है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी को हम इस फार्मूले से कैलकुलेट करते हैं, और इस फार्मूले में और जो डेल्टा ई का फार्मूला था जो हमने प्रीवियसली लर्न किया था, उसमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमने इसमें एच को निकाल दिया है। सो एच को अगर आप यहाँ से कैंसिल कर दें, क्योंकि एच म्यू अगर आप देखें तो अगर आप इसमें से एच निकाल दें तो आपके पास फ्रीक्वेंसी रह जाती है। तो वॉबलिंग फ्रीक्वेंसी आप इसी फार्मूले से ही डिटरमिन करते हैं। ओके, इसमें की पॉइंट ये है कि जो स्पिन है न्यूक्लियस का और उसके साथ जो एसोसिएटेड मैग्नेटिक मोमेंट है, जो एरो है, that is always present whether external magnetic field is there or not. But Larmor frequency, ये जो wobbling है इसके अंदर, that occurs only when applied magnetic field is present. यानी अगर आप कहें कि मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड एब्सेंट है, तो आपके जो न्यूक्लियस है ये स्पिन भी कर रहा होगा, और उसके एक सेंटर में एक मैग्नेटिक मूवमेंट भी मौजूद होगा, लेकिन इसके अंदर वॉबलिंग नहीं होगी। अब वॉबलिंग जो है वो उस वक्त होगी जब ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में आएगा, तो आपका ये जो एरो है that will be tilted a little bit and it will start moving in a circular path. तो ये जो सर्कुलर मूवमेंट इंड्यूस हुई है आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज कॉल्ड लार्मर फ्रीक्वेंसी, और ये सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड पे ही डिपेंड करती है। अगर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है, स्ट्रॉन्गर है, then this Larmor frequency will also be larger and vice versa. इसमें भी अगेन एक एग्जांपल है कि व्हाट इज द प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी और लार्मर फ्रीक्वेंसी, दोनों टर्म हम यूज करते हैं कि व्हाट इज लार्मर फ्रीक्वेंसी ऑफ ए प्रोटॉन इन ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 7.05 टेस्ला। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ आपको दी हुई है, आपने सिंपल इसके अंदर इस इक्वेशन को लिखना है। इसमें गामा की वैल्यू आप डालें 267.53 टाइम्स 10⁻⁶, इसको मल्टीप्लाई करें आप मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ से, 2/2 आप नीचे लिखेंगे, और इसको सॉल्व करने से आपके पास ये वैल्यू आती है। तो इसमें से अगर आप 1 2 3 4 5 एंड 6 डिजिट आप इस साइड पे आएंगे, तो ये आपको 300 पॉइंट समथिंग टाइम 10⁻⁶ हर्ट्ज आपको वैल्यू देगा, और 10⁻⁶ को हम मेगा कहते हैं, और हर्ट्ज आपका उसके साथ आ जाता है। इससे सोफिस्टिकेटेड वे ऑफ राइटिंग फ्रीक्वेंसी इन NMR, सो वी हैव टू फॉलो दैट, कि आपके पास जो भी आंसर आए उसको मेगा हर्ट्ज में कन्वर्ट कर दें। ऑलराइट, सो विद दैट वी स्टॉप। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये सारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं इनको अप्लाई करेंगे, और उसके बाद हम इसकी जो थ्योरी है उसको कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। ओके, नो क्वेश्चन, देन वी विल स्टॉप एंड इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।